Hello students, it's grade 4, block 2, your science textbook, Living Beings and Their Surroundings. See, in this lesson we are going to see living things and their surroundings. How the living things protect themselves, their environment, and effects of weather on the living things we are going to see. हम कौन से विभिन्न लिविंग बींग्स अपने आसपास देख सकते हैं? आज हम जानेंगे कि लिविंग बींग्स को अपने एनवायरनमेंट से क्या आवश्यकता है। आज हम ये भी जानेंगे कि क्यों लिविंग बींग्स विभिन्न एनवायरनमेंट में रहते हैं। So let's read the lesson and understand it. So I am reading on your science textbook, page number 14. Please pay your attention. Things living beings need. Earth is home to many living beings such as plants, animals, and humans. All living beings need air, water, sunlight, and food to live. Plants make their own food using air, water, and sunlight. See in figure number first, you will see that plants make their food by using air, sunlight, and water. Plants need air, water, and sunlight to make their own food. Versus animals and humans obtain food from plants and other animals. अब प्लांट्स तो सनलाइट से उनका खाना बनाते हैं, पर एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको खाना चाहिए इसके लिए, और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड रहते हैं. Living beings also need shelter and clothes. Animals and human beings need shelter to protect themselves from harsh weather conditions and enemies. अब लिविंग बींग्स जो हैं उनको भी शेल्टर चाहिए, कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए कि उनको भी दूसरे वातावरण से उनकी रक्षा हो सके और उनके एनिमीज से उनकी सुरक्षा हो सके. फॉर एग्जाम्पल, रैबिट्स डिग ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर. जैसे रैबिट्स जो है वो ब्यूरो बनाते हैं उनके रहने के लिए. एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर लिव इन केव्स. अब लायन और टाइगर जैसे एनिमल्स जो हैं वो केव्स बनाते हैं. और पीपल लिव इन हाउसेस. लोग जो हैं वो घर बनाते हैं और लायन और टाइगर जैसे एनिमल्स केव बनाते हैं. सी इन दिस फिगर. We also need clothes to cover our body and protect ourselves from different weather conditions. हमें कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें अलग अलग वातावरण में रहना होता है, इसलिए हमें कपड़े भी चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए. To cover our body. Come on the next page. Living beings and their environment. Different living beings need different environment. अब हर जो अलग लिविंग बींग्स हैं उनको अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ लोटस प्लांट इज ऑलवेज फाउंड इन वाटर. द फिश लिव इन वाटर. अब जैसे कि लोटस जो है वो उसको पानी चाहिए, फिश जो है उसको पानी चाहिए. सी इन दिस फिगर. फिश को भी पानी चाहिए. Humans and many other animals like deer and lion live on land. Have you ever wondered what would happen if these living beings exchange their places? They would not be able to live. अगर इन लिविंग बींग्स की प्लेसेस एक्सचेंज की जाए तो क्या होगा? वो रह नहीं सकेंगे. अगर हमने
फिश को लैंड पे ला लिया और ह्यूमन को पानी के अंदर भेज दिया, तो क्या वो रह पाएंगे? वो नहीं, वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे. सो different animals need different environment to live, to survive. Every living being lives in an environment which is suitable for it to survive. For example, if land animals are left in water or aquatic animals like fish are taken out of water, they would die. मैंने अभी अभी कहा कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को अगर पानी में लाया जाए या फिर पानी में रहने वाले जानवरों को ज़मीन पर लाया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे. Every living being has special features that help it to adapt to its environment easily. For example, arboreal animals like monkeys have long limbs and tails that help them to hold on to trees and move from one tree to another. अब हर एक एनिमल्स के पास अपने अपने अलग विशेषताएं होती है जिसकी वजह से वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जी सकते हैं. जैसे कि मंकीज के पास लंबी लंबी टांगें होती हैं, लंबी पूंछ होती है जिससे कि वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जंप कर सकें और झाड़ों पर रह सकें. सी इन दिस फिगर, सम एनिमल्स लाइक yaks live on mountains. They have long hair to keep them warm. Animals like camel that live in deserts can stay without water for many days. अब याक जैसे एनिमल्स हैं जो कि माउंटेन्स पर रहते हैं और उनको बहुत लंबे बाल होते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए उनके बॉडी के ऊपर बहुत बाल होते हैं जो कि उन्हें ठंड से बचाते हैं. और कैमल जैसे एनिमल हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, तो वो एनिमल्स बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं. तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग विशेषताएं होती हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के लिए. सो hello students, it's grade 4 block 2 living beings and their surroundings. अब सीजन्स रहते हैं, समर सीजन रहता है, मानसून सीजन रहता है और विंटर सीजन रहता है. तो हम समर सीजन में अपने आप को ठंडा, गर्मी होती है ना, तो गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? हम आइसक्रीम खाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी की तकलीफ ना हो. तो रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? मानसून सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं. तो आज हम ये जानेंगे कि अलग अलग सीजन का जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है. इफेक्ट्स ऑफ वेदर ऑन लिविंग बींग्स. सो लेट्स रीड. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर: summer, monsoon and winter. Sometimes the needs of living beings also change with the season. कभी कभी लिविंग बींग्स के जो नीड्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. समर में इन समर द वेदर इज मोस्टली हॉट एंड द विंड इज वार्म. गर्म हवा रहती है. प्लांट्स ड्राई क्विकली एंड नीड मोर वाटर. झाड़ जल्दी सूख जाते हैं और उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. Some of them turn yellow or die when they do not get enough water. कुछ प्लांट्स तो सूख भी जाते हैं क्योंकि उन्हें sufficient पानी नहीं मिलता. Humans as well as some animals sweat a lot in summer, so they need to drink more water to stay cool. बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, कुछ एनिमल्स को भी आता है और इंसानों को भी आता है. तो उनको इस सीजन में ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है. एनिमल्स सच एज बफेलोज ट्राई टू कूल देमसेल्व्स बाय स्पेंडिंग मोर टाइम इन वाटर ड्यूरिंग द डे. सी इन फिगर नंबर 5. See in this figure, you can see a buffalo is staying in water to cool by
staying in water. This is buffalo, and animals keep themselves cool by water. So मूविंग टू शेडेड प्लेसेस, और छाँव की जगह पर जाते हैं एनिमल्स. पीपल लाइक टू स्टे इन देयर होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द सन. दे वियर कॉटन क्लोथ्स सो दैट दे डू नॉट फील हॉट. तो लोगों को घर पर रहना ही पसंद है क्योंकि उन्हें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए. अब मानसून सीजन के बारे में जानेंगे. द मानसून इज कॉल्ड द रेनी सीजन बिकॉज वी गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम. अब मानसून सीजन में क्या होता है कि बारिश आती है, तो द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट. तो उसके वजह से जो वेदर है वो ठंडा रहता है और खुशनुमा रहता है. प्लांट्स ग्रो वेल एज देयर इज मोर वाटर. पीपल यूज अम्ब्रेलाज and wear raincoats to protect themselves for getting wet. अब मानसून रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, रेनकोट्स यूज करते हैं जिससे कि हम गीले ना हो सके. देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि पीपल इन द रेन एंड दे यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स. अब आते हैं विंटर सीजन की तरफ. द वेदर बिकम्स कोल्ड एंड द विंड इज कूलर. The nights are cooler than the daytime. Some plants shed off their leaves in this season. Many animals like polar bears go into a long sleep during the winter season and take shelter in warm places. People wear woolen clothes to keep themselves warm in winter and like to sit near bonfires. अब विंटर सीजन में बहुत ठंड होने की वजह से हवा ठंडी होती है और रात में ज़्यादा ठंडी लगती है डे टाइम से. अब कुछ प्लांट्स के लीव्स भी गल जाते हैं इस सीज़न में, और बहुत सारे एनिमल्स जैसे पोलर बियर्स हैं वो थ्रू आउट द विंटर सीजन दे स्लीप एंड टेक शेल्टर इन वार्म प्लेसेस. पीपल वियर वुलन क्लोथ्स. अब लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और बोन फायर के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं. सी इन दिस फिगर पीपल्स आर सिटिंग नियर द बोन फायर. आग के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग ठंड से बचने के लिए. सो व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस लेसन? लेट्स कम ऑन द पेज नंबर 17. लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. अब लिविंग बींग्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं ये हम देखते हैं. ऑल लिविंग बींग्स लिव टुगेदर इन ऑन एनवायरनमेंट एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. Plants also provide various useful products like medicines, cottons, and rubber. अब आदमी और जानवर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनका फूड के लिए, क्योंकि प्लांट्स हमें बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि दवाइयाँ देता है, कॉटन देता है, रबर देता है. सी इन दिस फिगर you can get cotton from the cotton plant. Animals and humans also help plants in many ways. Humans provide water and nutrients for plants to grow. Animals help in the dispersal of plant seeds. Dispersal means spreading or scattering. इधर उधर जाना. सीड जैसे एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स के सीड को इधर उधर जाने के लिए. द सीड्स ऑफ प्लांट्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस. समटाइम्स द सीड आल्सो गेट कैरीड ऑफ व्हेन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो द सीड्स इन डिफरेंट प्लेस. अब
झाड़ों के जो बीज होते हैं वो एनिमल्स के बॉडी को चिपक करके इधर उधर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ह्यूमंस जब फ्रूट्स खाता है तब भी वो सीड्स जो हैं वो इधर उधर फेंके जाते हैं। सी द पैराग्राफ। People also depend on other animals. For example, domestic animals like cow, goat, sheep, and hen provide milk, eggs, meat, and wool. Animals like donkey, horse, and camel are used in transportation and carrying goods from one place to another. अब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घर पे जो पाले जाते हैं एनिमल्स लाइक काऊ, गोट और शिप, हैन, ऐसे एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं और वूल देते हैं। और डोंकीज और हॉर्स और कैमल जैसे एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब इधर उधर गुड्स ले जाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह हमें अगर कोई चीज ले जानी है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इन ट्रांसपोर्टेशन के वर्क में कैमल, डोंकी और हॉर्स का यूज होता है। द डंग ऑफ एनिमल्स कैन बी ड्राइड एंड मेड इनटू डंग केक्स। डंग मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो डंग होती है वो हमें डंग केक्स उससे प्रोड्यूस करते हैं। सी इन फिगर नंबर 9, डंग केक्स are produced. In this figure you can see, in this picture, dung cakes are produced. These cakes are also burnt and used as fuel to cook food. People take care of these animals by providing them food and shelter. तो ये केक्स फ्यूल बनाने के काम आता है। फ्यूल मीन्स एनीथिंग दैट इज बर्न्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जिससे कि हमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह ये जो चेन है वो एनवायरनमेंट की है। So students, I think you can understand the lesson better. Till the next video, goodbye.